तो फिलहाल कर्नाटक चुनाव का रण तैयार हो चुका है। मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है और न्यूज इंडिया अपने पूरे पैनल के साथ इस वक्त एक एक चीज तक जानने की कोशिश कर रहा है। कर्नाटक का इतिहास जानने की कोशिश कर रहा है, वहां के राजनीतिक समीकरणों को हम लगातार तलाश रहे हैं। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सर्वेश जी भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, जरा आप बताइए, जिस तरीके से अंतिम टाइम में देखा गया, अंतिम वक्त में देखा गया है कि जब चुनाव प्रचार का आखिरी वक्त आ रहा था, तब तमाम मुद्दे एकदम से हावी हो गए, चाहे बजरंगबली का मुद्दा आया हो, जहरीली सांप का मुद्दा आया हो। क्या लगता है आपको, कांग्रेस के पास तो एक मुद्दा ही काफी था, यदि उसी मुद्दे को बना लिया जाता, उसी मुद्दे पर कायम रहा जाता कि 40% कमीशन की बात थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, वही काफी था कांग्रेस के लिए, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी कांग्रेस को। देखिए, आपने सही कहा। मैंने कहा ना कि आप देखिए, मैं आपको ले चलता हूं उत्तराखंड के चुनाव में। हाँ। उत्तराखंड में जब चुनाव हो रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। वहां भी ये हो रही थी कि कांग्रेस आएगी। जो भी बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित थे, तो वो उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि बीजेपी की वहां स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन ग्राउंड पे कुछ और बात थी। वहां पे अनाउंस क्या कर दिया गया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। और ये जो कहते हैं ना, जंगल में आग की तरह वहां पे काम कर दिया। बीजेपी ने इसी को भुना दिया। हाँ। और जो बाजी कांग्रेस की ओर जा रही थी, वो पलट के बीजेपी की ओर आ गई। हाँ। भले वहां के सीएम कैंडिडेट खुद अपना सीट हार गए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सत्ता जो कहते हैं वहां पे इतिहास रचना, उत्तराखंड में बीजेपी दोबारा आ गई और यूपी में तो इतिहास रची ही रची। यूपी में तो ऐसा कुछ भी ಗೆ ಬಂದು ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯರಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಮತದಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. 100ಕ್ಕೆ 100 ಮತದಾನ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದೊಂದು ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಇವತ್ತು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ 6-7 ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಮತದಾರರು ಇರುವಂತಹವರು, ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 80 ವರ್ಷ ತುಂಬದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಕೂಡ ಈ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 80 ವರ್ಷ ತುಂಬದವರಿಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಮತದಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡಿದಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜನಗಳೇ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇದು ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು, ನಾವು ಚಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪದಾಗಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮತ ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟರಲ್ಲ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತಹ ಒಂದು ಮತವನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಸೆ ಆಮಿಷಗಳಿಗಾಗಲಿ ಮತ್ತಿತರಕ್ಕಾಗಲಿ ಒಳಗಾಗದೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಿಕೊಳ್ಳಬಾರ್ದು. ಅದರ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ದುಬಾರಿ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಹೌದು, ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಮೀರಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದು. ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಣ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಚುನಾವಣಾ तो सिंधालिंगा स्वामी को आप सुन रहे थे। श्रीराम सेना के अध्यक्ष हैं जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे थे और वो लोगों से अपील यही कर रहे थे कि आज आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलिए और अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। और यही अपील लगातार आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया भी कर रहा है कि आप लोग अपनी इस वोट की ताकत को समझिए, क्योंकि एक वोट से हार और जीत तय हो जाती है। लिहाजा घरों से बाहर निकले, अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और आपके हक में जो सरकार बेहतर कर सकती है उस सरकार को चुनिए, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। मेहमानों का बड़ा पैनल लगातार हमारे साथ मौजूद है और हमारे साथ अजय वर्मा जी मौजूद है।
सर्वेश्वर पाठक जी मौजूद है, आलोक बस जी मौजूद है हमारे साथ। और चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, अब चर्चा को आगे बढ़ाएं, तो आलोक जी एक चीज बताइए, बीजेपी लगातार ये कहती नजर आ रही है कि 70 सालों में वो नहीं हुआ जो हमने इन 8-9 सालों में कर दिया। लगातार वो कह रही है कि कुछ भी नहीं था, पूरे भारत की तस्वीर बदलने का काम हमने किया है। लेकिन अगर जब काम इतना होता है, विकास इतना होता है, तो जब चुनाव आते हैं तो उसमें हम काम क्यों नहीं गिनाते, हम काम के बल पर वोट क्यों नहीं मांगते, क्यों हम सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति इन्हीं सब में घिरकर क्यों रह जाते हैं? ये आपकी गलतफहमी है। हम जहाँ कहीं भी गए हैं और जहाँ कहीं भी जीते हैं, हम अपने काम की बदौलत जीते हैं। जितने भी हमारे प्रधानमंत्री के योजनाएं कल्याणकारी हैं, 37 हैं, उनका नाम गिनाने से कोई फायदा नहीं, लेकिन जो कुछ मुख्य है मैं आपको बता रहा हूँ। शौचालय का निर्माण, घरों का निर्माण, रोड का निर्माण, या ये हेल्थ का बीमा इत्यादि कुछ जो चीजें हैं, या फिर राशन, हमने जाति धर्म के भेदभाव को नहीं रखा और समाज के अंतिम पायदान के लोगों तक, इन्हीं के पार्टी के राजीव गांधी का वक्तव्य है कि मैं 1 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो वो पहुंचता है 19 पैसे। वाजपेयी जी ने जब पूछा था ये चमत्कार कैसे होता है, तो उन्होंने कहा रुपया है घिस जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के काल में हमने रुपया को घिसने नहीं दिया। 1 रुपया अगर दिल्ली से चला तो 1 रुपया अंतिम पायदान पर खड़े आदमी के जेब में गया। यही कारण है। और चीजें तो ये लोग ले आए, सांप कहना, नलायक कहना, चोर कहना, चौकीदार कहना, उसके बाद लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा भी कहीं ना कहीं आलोक जी इस वक्त कर्नाटक में छाया हुआ है ना। देखिए आलोक जी बजरंग बली के बारे में बोलना। आलोक जी वो तमाम चीजें बीजेपी बखूबी कैश करे पूरे देश भर में, वो सब देख भी रहा है। लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, 40% कमीशन का मुद्दा हो, ये तमाम चीजें इस वक्त मुंह बाहें खड़ी हुई है और ये कहीं ना कहीं गले की फांस बीजेपी के लिए बन जाएगी कर्नाटक में। ये सब चीजें, भ्रामक चीजें, तथ्यहीन बातें ये सब फैलाई गई है जी। ठीक है, अजय जी को ले आते जरा। इसका कहीं कोई सार नहीं है। अजय जी भ्रामक बातें हैं। अजय जी भ्रामक बातें हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊं उस विधायक का, जो इनके भाजपा के विधायक हैं। अब इनको तो आदत है, चूंकि इन लोगों की तो बोलो, सुबह बोलो, झूठ बोलो, रोज बोलो, शाम बोलो, 100 बार बोलो, तो इनकी आदत है, इसका कोई बदल नहीं सकता। ये जनता अपने आप बदल देगी। वो वीडियो था जिसमें ये कहा गया था, एक विधायक ने, कर्नाटक के चुनी हुई सरकार की ने, कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री, वो वायरल हुआ था, अभी दिखा दूं आप खोल के, कि 2500 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री बनता है और 100 करोड़ रुपए में मंत्री बनता है। चलिए, वो आत्महत्या कर ली थी 40% कमीशन पर। ये भ्रामक बता रहे हैं उसको। मतलब कितनी गलत बात करते हैं कि आत्महत्या आदमी कर रहा है, भ्रामक। ठीक है, फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी जी परमेश्वर की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। तो कांग्रेस प्रत्याशी है ये, जिन पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है, जो अभी अपने मत का इस्तेमाल कर चुके हैं। वोट डाला है कांग्रेस के प्रत्याशी ने, परमेश्वर जी है ये वहां पर। और अब लगातार ऐसे ही सिलसिला जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। लोग आ रहे हैं, अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और वापस जा रहे हैं। जी अजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। 9 बार हमने अब तक वहाँ जब से चुनाव हुए हैं, सरकार बनाई है, 10वीं बार हम पूर्ण बहुमत के साथ 150 सीटों के साथ सरकार बनाएंगे, इसमें कोई डाउट न माने। ये कुछ भी दिखाएं, इनकी मित्र मीडिया कुछ भी बताए, पूरा देश जानता है वो पहलवान हमारे देश की जो न लेकिन किसी अच्छा पार्टी की एक बात होती और है। पूछना चाहूंगी आपसे अजय जी कि यहाँ पर जी हाँ बोलिए चलिए। वो पहलवान बेटियां जो देश के दिल्ली पे बैठी हैं, जो भारत को गौरवान्वित करती हैं 196 कंट्रियों में, और बापू आशाराम के शिष्य और ये ब्रजभूषण के दिमाग और उसकी सोच के लोग उनके पास जा तक नहीं रहे। 4 किलोमीटर दूर पे देश की सारी सरकार रहती है, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बुलाते तक नहीं है। और जब बेटियां, आप जैसी बेटियां गोल्ड मेडल जीत के लाती हैं पत्रकारिता में और कुश्ती में, तो बुला के, मित्रों ये फोटो सेशन मेरे साथ करा लीजिए, गोल्ड मेडल हमने दिलाया है। आपके टीवी चैनल की आपकी मेहनत ने नहीं दिलाया, हमने दिलाया है। और जब बलात्कार का मामला और मोलेस्टेशन का, छेड़छाड़ का आता है, तो बोलेंगे नहीं, मन की बात। ये बात तो कांग्रेस को पूरी बखूबी तरीके से उठाना चाहिए। पूरा नहीं उठा पाए। इंडिया गेट से ये मैसेज कर्नाटक के हर घर की महिला के बहुत लेट यहाँ पर 5 करोड़ 61 लाख वोटर जो वहाँ आबादी है कर्नाटक का, उनके मन में है, वो तय कर चुके हैं कि ये जो उसका कारण देखिए, ये अपने घर के लोगों के यहाँ ईडी सीबीआई भेजते हैं, तो डर तो आदमी को लगता ही है ना। ठीक है सर्वेश्वर जी आपसे मैं समझना चाहूंगी राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते कि आज वो कौन सा फैक्टर है जो वहां की कर्नाटक की जनता के जहन में, दिल दिमाग में होगा, जिसे वो दिमाग में रख करके आज अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। सबसे बड़ी वजह वो कौन सी रहेगी जो वो चाहते हैं कि उससे निजात मिले? कौन सा वो मुद्दा है कर्नाटक की राजनीति में?
देखिए नित्या जी, कल एक बहुत बड़े ऑथर हैं और इन्वेस्टर हैं रुचिर शर्मा, उनका डिटेल एनालिसिस करके कर्नाटका का आया है और एक आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत बड़े समाचार पत्र में। उन्होंने लिखा है कि कर्नाटका का जो इकोनॉमी है पिछले एक दशक में 2010 से 2012 में अगर देखा जाए तो वो जो है 16वें पायदान से तीसरे पायदान पे आ चुका है। मान ले कर्नाटका में 2008 में कांग्रेस की सरकार थी, सॉरी 2008 से लेके 13 तक बीजेपी की सरकार थी, 13 से फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर उसके बाद बीजेपी है। तो इस समय में जो काम हुआ है, जो बीजेपी ने जो काम कर रहे हैं, वो चाहे गांव के छोटे शहरों में, कर्नाटका देखिए जो है बेंगलोर, वो आईटी का हब बन चुका है। अभी कुछ देर पहले आपने सुधा मूर्ति जी को दिखाया, ये उनका और उनके हस्बैंड का श्रेय जाता है कि कर्नाटका को भारत का सिलिकॉन वैली बनाने का। वो जो विकास की नैया जो कर्नाटका में हमारे दक्षिण के राज्यों में बह रही है, वहां पे अगर कुछ होता है वो गांव-गांव तक गया है विकास। क्योंकि जो रुचिर शर्मा ने डिटेल एनालिसिस किया उसमें ये बताया है कि आज़ादी में 1960 में जो कर्नाटका का वो जो रैंक था वो 9वां रैंक था, उसके बाद फिर धीरे धीरे गिरा, फिर उसके बाद आज 3rd रैंक पे है इकोनॉमी के मामले में, और हर क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो वहां के वोटर्स जो हैं, जो और यंग वोटर्स जो हैं, जैसे 11 लाख नए मतदाता जुड़े हुए हैं, और जो भी वोटर्स हैं वो इस चीज को समझ रहे हैं कहीं ना कहीं कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है तो यहाँ पे विकास हो रहा है। चाहे वो आप देखिए वहां के जो किसान लोग हैं, उनके जो स्मार्टफोन का सहारा लेके अपने कृषि इतना में विकास नए नए, अरे आप पहले शांत रहिए, 2 अक्षर पढ़ के आया करो, टेलीविजन पे आता जाता कुछ है नहीं, बकवास करना, पढ़ के आया करो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है, मैं इसकी रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ। और रुचिर शर्मा आपके राहुल गांधी की तरह पप्पू नहीं है, बता देंगे कि कौन है, ग्लोबल इन्वेस्टर है, पूरा देश पहलवान बता देंगे, युवा बता देंगे। बड़े समाचार पत्र के संपादक उसको फॉलो केवल करते एक हैं। बांसुरी बजाओ, तो जनता को समझ में कुछ नहीं आएगा। रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। हाँ, इसलिए 84 में सिक्कों के गले में टार लगा के चल रहा है देश के देश, इसलिए संसार के लोग कह रहे हैं। ठीक है सर्वेश्वर जी, ठीक है अजय वर्मा जी और क्या कहते हैं आपका सर्वेश्वर जी, जब 84 पे बात करेंगे तो तब कर लेंगे, और जब रूस की बात करेंगे तो तब इस मुद्दे पर आ जाएंगे। आज बात कर्नाटक की, सर आज बात कर्नाटक की करते हैं, आज बात कर्नाटक। दंगा था, किसने लिखा, इनको इससे मतलब नहीं है, पढ़ के आते नहीं है, इनका एक ही टेप रिकॉर्डर ऑपरेशन वीडियो स्टार करके आतंकवादियों को मारा था, पूरे भारत और देश के प्रधानमंत्री की हत्या करा दी गई है। तो इसका अजय जी शांत रहिए, अपनी बारगी बोलिएगा। सर्वेश्वर जी नहीं मिलेगा, देखो सर्वेश्वर जी अरे चोरी की गवर्नमेंट, अजय जी ऐसे समझ में नहीं आएगा जनता को। रुकिए सर, ठहरिए। पूरा देश जानता है कि किस तरह से मुझे इस बात, अरुणाचल में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ। ठीक है आप दोनों 2 मिनट के लिए शांत हो जाइए। ठीक है अजय वर्मा जी, सर्वेश्वर पाठक जी, ठीक है अजय जी सुनिए, अजय जी एक सेकंड देखिए, अगर ऐसे आप लोग चीखेंगे चिल्लाएंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, नहीं सर ठीक है। आलोक जी आप 85 करोड़ लोगों को 5 किलो, ठीक है सर, ठीक है अजय जी बाकी और लोग भी यहाँ पे पैनल में मौजूद है। अजय जी बाकी और लोग भी मौजूद है। 5 किलो अनाज पे लोगों को आप भिखारी बना रहे हैं। 5 किलो अनाज देंगे, ठीक है अजय जी लिखेंगे 20,000 करोड़ रुपए अडानी का कहां से आया, वो नहीं बताएंगे। सहमति है, भागीदारी है, उसी के साथ हो ना। ठीक है अजय जी, अरे सर ठीक है अजय वर्मा जी, कर्नाटक सर्वेश्वर जी, पाठक जी एक सेकंड। उसका भी हिसाब दे दो। अडानी पहचानेगा नहीं आपको, इसी इलेक्शन में बोलने से था, थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा आपको। बड़ा मुद्दा था। चलिए अब आलोक जी की भी सुन लेते हैं, जरूर की आप दोनों। आलोक जी क्या कहना चाह रहे हैं, बताइए आलोक जी। अभी सर्वेश्वर जी ने कहा हाँ कि वो 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बन गई है इंडिया में, तो ये क्या बगैर काम किए हुआ है। और दूसरी बात मैं आदरणीय वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि अगर इनकी पार्टी इतनी पाक साफ है, बगैर किसी घोटाले के है, तो सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, चिदम्बरम जी बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, और एक और आदमी इनके बहुत सलाहकार थे, वो बेल पे थे, लेकिन खैर वो दिवंगत हो गए।
तो ये इनके सारे बड़े नेता बेल पे हैं, किसी न किसी घोटाले में लिप्त है। अपने उसके बाद 4 लाख, अब आप मुझे बोलने दीजिए प्लीज। सुन लीजिए अजय जी, सुन लीजिए अजय जी, जब आपका नंबर आएगा आप बोले ना अजय जी। नहीं नहीं अजय जी, एक तरफा चर्चा नहीं होगी सर, बोलने दीजिए आलोक जी को। 4,82,000,000,000 का घोटाला कांग्रेस ने अपने 60 साल के रेजिम में किया, उसका जवाब इनके पास नहीं है। और ये बात कर रहे हैं जब जिस आदमी ने विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में लाके खड़ी कर दी, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है पूरे विश्व में, और हमारे यहाँ 7% पर बांध के रख दिया। 2004 से 2014 तक अभी इनकी 5 सरकार थी, 5 तो 11.2 था इनका इन्फ्लेशन रेट, आज वो है सर्वेश्वर जी बता रहे हैं कि 5.5 के आसपास 5 के आसपास लाके खड़ा करके ठीक रखा है, हुआ है। हाँ। और कह रहे हैं कि हमने कुछ किया ही नहीं। अरे ठीक है आलोक देश जी, की जनता हाँ। प्रबुद्ध है, बार बार हमें रिपीट कर रही है। आप आत्मविश्लेषण कीजिए, ठीक है। क्यों हिंदुस्तान की जनता ने भारत मुक्त एक से, जी कांग्रेस जी की मैं बात क्या की है। कहते हैं अजय जी, आपसे मैं जवाब लूंगा, लेकिन इस वक्त डॉक्टर रमेश ठाकुर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका स्वागत कर लीजिए। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। रमेश जी, कैसे देख रहे हैं आप आज के इलेक्शन को? कर्नाटक की जनता के मिजाज की अगर हम बात करें या फिर कर्नाटक में मुद्दों की बात करें, क्या लग रहा है कौन सी वो बात है जो सबसे ज्यादा हावी रहेगी? क्योंकि वोटिंग के लिए आज कर्नाटक पूरा तैयार है। अब पीएम मोदी का वीडियो मैसेज काम करे जाएगा, कांग्रेस का जो शपथ पत्र है वो काम करेगा, या फिर जिस तरीके से बजरंग बली की एंट्री होती है इस पूरे चुनाव में वो काम करेगा? देखिए, चुनाव जैसे पहले दरवाजे खुलते हैं वोटिंग के लिए, उससे पहले सबके ट्वीट आते हैं, चाहे राहुल गांधी हो जाए, सोनिया गांधी हो जाए, खड़गे साहब हो जाए, शाह साहब हो जाए या अमित जी हो जाए, तो उन्होंने सिर्फ एक बात की है कि ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलो, आप वोट डालो। तो इनके ट्वीट से एक बात बहुत अच्छी तरीके से समझी जा सकती है कि जनता का जो रुझान है आपके प्रति, वोटिंग डालने के प्रति कितने उदासीन होते गए। इससे सीधा सीधा ये मतलब होता है कि सामने वाला जो नेता है उसको लोग नकार चुके हैं। अब चुनाव आयोग कितनी भी कोशिश करे, कितनी भी जागरूकता दिखाए, कुछ भी दिखाए, वोट का परसेंटेज जो है 60 या 70 के ऊपर तक नहीं जाता, और कहीं कहीं जगहों पे होता है 30%। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये बदलती हुई भारत की तस्वीर है। ये जो 7, 8, 9, 10 सालों में जो चीजें बदली हैं, हमें लगता है जैसे अभी बीजेपी के साथी बता रहे थे कि बहुत जनता खुशहाल है, इन्फ्लेशन कहाँ पहुंच गया, जीडीपी कहाँ पहुंच गई है। देखो, आंकड़ों पे जब जाओगे ना, तो जब मैं आंकड़े बोलने लगूंगा तो आप फंस जाओगे, आप बोल नहीं पाओगे आंकड़ों में कहाँ है हम लोग। जीडीपी की अगर आप कंपेयर करोगे आज की चीजों से, स्कूलों से, महंगाई से, तो कई सारी चीजें ऐसी आएंगी जहाँ आपको शर्मसार होना पड़ेगा। खैर, हम बातों पे नहीं आते हैं, वोटिंग पे आ जाते हैं। कर्नाटक का जो माहौल है, कर्नाटक के माहौल में भारतीय जनता पार्टी मैदानी क्षेत्रों के जैसे चुनाव होते हैं, चाहे उत्तराखंड के हो जाए, चाहे हिमाचल के हो जाए, उस हिसाब से लेके चलने की हम रिपीट चाहिए कि हमारी सरकार किस तरीके से रिपीट हो जाए, लेकिन ये पॉसिबल है नहीं। बिल्कुल, यानी कि हम कह सकते हैं राजनीतिक जो समीकरण है, जो राजनीतिक इलाकाई राजनीति जो है कर्नाटक में, रमेश जी, कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल, देखो मायने भी रखती है, अलग है, बहुत अलग है, क्योंकि वहाँ के लिंगायत से बहुत बड़ा एक समुदाय है। उनकी जो बरसों से एक मांग होती आई है हमें अलग करने की, हमें अलग सुविधाएं देने के लिए, वो पूरी नहीं हो पाई। उसके बाद में जो वहाँ के ब्राह्मण है, दलित है, उनकी भी कई सारी ऐसी मांगे हैं जो पूरी हो नहीं पाई है। और उनको पिछले 5 साल में बहुत, येदियुरप्पा साहब से बहुत उम्मीदें थी। जब वो सरकार में आए, फिर सरकार छोड़ के गए, फिर पार्टी उन्होंने बदली। तो ये जो ड्रामे 5 साल से वहाँ पे जो कर्नाटक में चल रही है, जनता बड़ी दुखी है। विकास कार्यों की जो गंगा बहनी चाहिए, जो डबल इंजन की सरकार कही जाती है, इस सेंट्रल से जुड़ के जो वहाँ की योजनाएं यहाँ पे भी लागू होनी चाहिए, तो वो बिंदुवार तरीके से लागू नहीं हो पाई है। वो इस बार जनता हिसाब चाहती है। उस हिसाब से अगर आप ये कहो कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तो बहुत जल्दबाजी हो गई, क्योंकि कांग्रेस को अंडरस्टिमेट करके आप नहीं चलोगे। कांग्रेस की स्थिति भी बहुत मजबूत है। वहां पे अगर 10 लोगों से अगर बात करो तो 8 लोग ये कहेंगे कि नहीं, जो सरकार चल रही है उससे हम खुश नहीं है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि वोटिंग किसके पक्ष में होने वाली है। जो पिटारा खुलेगा जिस दिन मतगणना का, तो स्थिति आपको पता है, साफ होनी है। बिल्कुल ठीक है। क्या कहते हैं सर्वेश्वर पाठक जी, कितने सहमत हैं आप डॉक्टर रमेश ठाकुर की बात से? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो भी डेटा है, डेटा आप देख लो, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत वर्ष का कर्नाटका है,
और उसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट का भी ठीक है, 2010 में कांग्रेस के भी गवर्नमेंट रहे, उनका भी योगदान है, लेकिन जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसका योगदान बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो डेटा आता है वो करंट जो मायने होते हैं, जो मापदंड होते हैं, उस फैक्टर्स को लेते हुए होते हैं। ठीक है, प्राइस राइज है, प्राइस ये है, आप ये देख लो ना, विश्व जो है पूरे आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और उसका आंशिक असर भारत पे पड़ रहा है। तो इसका श्रेय किसको जाएगा? भारत में या तो कांग्रेस की सरकार होती तो उसको जाता। हमारे देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुए और 1991 में जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के समय में जो पॉलिसी लाई गई, इकोनॉमिक पॉलिसी, उसका श्रेय आखिर कांग्रेस को जाता है कि नहीं जाता? जरा रुकिए सर्वेश्वर जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि तमाम जगह बहुत कुछ अच्छा हुआ है और जिस तरीके से इकोनॉमी है बड़ी है, चलिए मान भी लेते हैं। यदि हम सिर्फ स्पेसिफाई कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में बीजेपी के अंदर इतनी अंतकला क्यों देखने को मिली? पहली बात ये, किस तरीके से 47 विधायकों ने साथ छोड़ा है वो आपने देखा, डिप्टी सीएम छोड़कर चले गए, पूर्व सीएम छोड़कर चले गए साथ। दूसरी बात ये आती है सामने कि आप लिंगायत समुदाय की बात कर रहे हो, आपने बसवराज बोमोई को सामने नहीं रखा था उन्होंने, ठीक है, उनके बिहाफ पे वोट नहीं मांगे गए हैं, वोट मांगे गए सिर्फ सामने बस यूं कह सकते हैं जो येदियुरप्पा थे उनके सामने वोट मांगे गए। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत अलग देखने को मिलती हैं, ऐसा क्यों? तमाम चीजें सही चलती। देखिए, हाँ, आप येदियुरप्पा जी जो है कर्नाटक पॉलिटिक्स के बहुत बड़े धुरंधर खिलाड़ी है, तो बीजेपी उनको भी अलग नहीं रख सकती। भले हाँ। वो उन्होंने अलग एक मार्गदर्शक मंडल में डाला, लेकिन उनका अच्छा खासा प्रभाव है। और रही बात की ये नेता छोड़ के चले गए, वो नेता छोड़ के चले गए, कांग्रेस का देख लो कितने बड़े बड़े चले गए, जितने युवा चेहरे थे वो सब एक से एक छोड़ के जा रहे हैं। तो वो एक अलग बात है। दूसरी बात, 10 सेकंड मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए। जब भी चुनावी माहौल होता है तो उस समय टूरिज्म का स्टार्ट हो जाता है। कुछ नेता कांग्रेस छोड़ के बीजेपी जाते हैं, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस आते हैं। रही बात बीजेपी की, जो सबसे बड़ी खासियत और बात है कि वो अपने सिटिंग एमएलए, चाहे वो निकाय चुनाव हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी, उनको भी हटाने का मुद्दा रखती है। और अगर उसमें कुछ कहीं पे किसी एरिया में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस अपना नहीं किया है और उसी के मद्देनजर उन्होंने बहुत सारे सिटिंग एमएलए का टिकट काटा, जिसमें जगदीश शेट्टर का भी था और डिप्टी जो सीएम थे उनका। अगर वो पार्टी में काम नहीं करना चाहते, उन्हें केवल मलाई चाटनी है, सत्ता का सुख भोगना है, तो कहीं भी भारत की राजनीति में इतनी सारी पार्टी है, कहीं भी जा सकते हैं। वही चीजें कांग्रेस पे भी लागू होती है। अब देखिए, जो आजाद साहब, गुलाम नबी आजाद साहब, इतने दिनों पार्टी में रहे, कांग्रेस छोड़ के चले गए, फिर कांग्रेस ने कहा जिसको रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। उसी तरह बीजेपी में है। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि जो नेता है उनका अपना एक एजेंडा होता है, पार्टी अपनी जगह पर रहती है। कुल मिलाकर के आप ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको जाना है जाए और जिसको रहना है वो रहे। ठीक है, अगर पार्टी अपने फर्म पे, अपनी नीतियों पे अगर दृढ़ संकल्प लेके चल रही है, तो जो नेता है अगर पार्टी में है तो पार्टी के कारण है। अब देख ले कि यूपी में क्या हुआ, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ के गया, बहुत बड़ा ओबीसी एससी का नेता बन रहा था, क्या हो गया आखिर यूपी में? सवाल पार्टी छोड़ने का नहीं था, अंतकलह का था। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, सभी पार्टी की अपनी एक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी होती है, उस पर यदि कोई खड़ा नहीं होता था तो जा सकता है, जाहिर सी बात है। निदा, ठीक है। आलोक जी, आपने सुना डॉक्टर रमेश ठाकुर ने, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत अच्छे से उन्होंने कांग्रेस की तरफ से भी समझाने की कोशिश की, बीजेपी की तरफ से भी समझाने की कोशिश की, लेकिन मानेंगे आलोक जी इस बात को कि जो टक्कर है वो कांटे की है? मैंने आपको शुरू में कहा कि हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं। हमारे लिए हर चुनाव बहुत मायने रखता है और हमारी जनता, हमारी जो कार्यकर्ता। लेकिन आप कांग्रेस को सीरियस नहीं लेते ना, इस बार सीरियस लेते नजर आ रहा है। हम हर वक्त हर आदमी को सीरियस लेते हैं। ये आपको गलतफहमी है कि हम किसी को सीरियस नहीं लेते हैं। हम बिल्कुल सीरियस अपने ऑपोजिशन को, चाहे वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, हम उसको भी सीरियस लेते हैं। लेकिन आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हम ऐसे नहीं बन गए हैं। जिन कार्यकर्ताओं की फौज हमने तैयार की है, ईमानदार, कर्मठ, देशभक्त कार्यकर्ताओं की, वो 365 दिन वो पीले रहते हैं जनता को हमारी सारी योजनाओं को समझाने में, उनका दिल जीतने में। और सबसे बड़ी बात है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमारे प्रधानमंत्री 365 दिन इस मोड में रहते हैं। आपने देखा होगा यूपी का चुनाव ठंडा नहीं पड़ा और गुजरात के चुनाव का बिगुल उन्होंने फूंक दिया, और क्या हुआ गुजरात में ये भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो कर्नाटका में भी इसी तरीके का रिजल्ट आएगा। ठीक है, कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर लोगों ने हमें उलझाने की कोशिश की, बाद में उन्होंने और ऐसे मुद्दे दे दिए जिससे जनता को ये विश्वास हो गया कि ये
पार्टी ये अंदरूनी मामला इनका। अभी इनके यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं तय है, कोई खड़गे साहब को बना रहा है, कोई सीतारामैया को बना रहा है, कोई चंद्रशेखर रेड्डी को बना रहा है। तो ये सब चीजें इनके यहाँ अंतर, हम तो पूरी की पूरी कैबिनेट बदल देते हैं, पूरी की चीफ तो आलोक जी, ये तो आप मानते हैं ना कि यहाँ पे जो समुदाय है, आलोक जी ये तो मानते हैं समुदाय जो होता है वो कर्नाटक में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लिंगायत समुदाय है, वो कलिका है, इसी के साथ साथ कोरवा समाज है। लेकिन यदि हम देखते हैं वीरशैव, हाँ वीरशैव जो लिंगायत फोरम है उसने बाकायदा चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिखकर यहाँ पर साफ तौर पर कांग्रेस को समर्थन की बात करी। ऐसे बीजेपी से कैसे देखेगी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो तीन समुदाय की आपने बात की, लिंगायत, वोकालिंगा और कुरबा, तो इन लोगों का वहां के वोटरों पर 38% नियंत्रण है। लेकिन किसी समुदाय के चीफ के लिख देने से ऐसा नहीं होगा। हमारे पास भी लिंगायत के कद्दावर नेता हैं। तो वो जरूरत क्यों पड़ी? आप मतलब यदि सब कुछ अच्छा था तो उनमें भी, हाँ चलिए बोलिए, बताइए। ये नकली हिंदुत्व का जो अजय जी पे टॉस करते हैं, अजय जी इसका जवाब दे पाएंगे? हाँ, मैं इन्हीं की बात को आगे दूंगा। इन्होंने कहा साहब एक अकेले वहां पर 38% का नेतृत्व करते हैं, एक अकेले से कुछ नहीं होता। एग्जैक्टली मैं यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री एक होता है, 140 करोड़ का नेतृत्व करता है। वहां जब बात आती है तो ये कहते हैं नहीं, एक प्रधानमंत्री ने जो कह दिया वो दे। ये झूठे लोग, ये नकली लोग, ये गॉडसे के विचारक, इनका काम केवल ये झूठ बोलो, सुबह बोलो। देखिए कर्नाटक में 150 सीटों के साथ हम जीत के सरकार बनाएंगे, ये कुछ कहते रहे 40%। ठीक है, तो 150 सीटों के साथ हम सरकार बनाएंगे, ये दावा आज भी कांग्रेस पार्टी कर रही है। जी ठीक है, अजय जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आलोक बस जी और डॉक्टर रमेश ठाकुर जी, ठीक है, सभी मेहमान। ठीक है सर, और ये कह रहे थे कि 4 लाख 11 लाख। अजय जी वक्त की कमी